Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about project quality management and project communication management. Before starting today's lecture about quality and communication management, we just summarize the previous lecture. We discussed project cost management in the previous lecture. We started with the basic concepts about cost and different concepts like cost, profit margin, and then we have a discussion about direct and indirect cost, and we discussed that it is easy to measure the direct cost, whereas indirect costs are difficult to measure. We also discussed sunk cost, and we learned that we shouldn't include sunk cost whenever we are having feasibility for the project. We want to invest more in the project. We have to decide whether we have to continue or not. Then we should not include the sunk cost. And we also learn about the learning curve theory, that whenever we do something for the first time, it takes more time as compared to the same activity performed for multiple times. And similarly, if we produce some product for the first time, the cost will be high, but when we do the mass production, then the cost will be reduced. And then we discuss the key processes of cost management. The first one was the estimating cost, in which we have to have estimates for different activities or the tasks. And then we discussed three different type of estimates. The first one was the rough order of magnitude, and in this kind of estimate it is quite rough, and the accuracy is like minus 50% to plus 100%. So it is at very initial stage, even before starting the project. When we are deciding about the projects, we may estimate in this form. And then we have budgetary estimate, and budgetary estimate is still not as accurate as the definitive cost estimate, but still better than the rough order of magnitude. And in budgetary estimate, we have to have this estimate about 3 years prior to the project completion. And then definitive cost estimates are done before 1 or less year time, less than 1 year time before the project completion. And these are the most accurate cost estimates, still have the variation about minus plus 10%. Then we discuss some tools and techniques to estimate better project cost. And we have three different type of estimation tool or techniques that we discussed. The first one was the top-down estimate, and top-down estimate is like conventional technique, or it is used for the conventional projects. If we have already done similar projects in the past, then we use this type of estimate. But if project is quite new or unique, then we have to go for bottom-up estimates, in which we estimate for the work items or the individual tasks or activities, and then we sum up to calculate the total cost estimate of the project. And then parametric modeling, and in parametric modeling we consider different parameters of the projects, characteristics of the project, and then we assign different weight to those parameters, and then we calculate the overall estimate of the project. And a quite good common example of the parametric modeling is COCOMO model or COCOMO 2 model, that is commonly used for software projects. Then we discussed some key problems related to the IT project cost estimation, and we discussed
about the quick estimates that before understanding and having clear idea of the system requirements, IT professionals are used to jump into the cost estimates. So quick estimates are not good, and also it depends on the nature of the project and the area of the project or the domain of the project. So we have to consider the nature of the application or the project and also the domain in which we are working, and then technical experts or the IT professionals are quite good in their technical skills, but they are not too good in managerial or the cost estimation or the cost management skills. So we discussed that the top management must support their juniors, their team members to train them, or they may hire cost specialists or the professionals who can do this job better than the technical professionals. And we also discussed that being a human, we always inclined towards underestimation. So when we are estimating, we must be realistic and we have to have a realistic estimate. And at first instance, they may seem quite high, but we have to convince the top management about the estimates, and then higher management or the top management can negotiate with the project sponsor or the customer to settle down all the matters related to the estimates. Then we discussed determining and controlling budget, and it was about monitoring activities, that how to first we have to prepare the budget and then we have to control it. We have to monitor the activities, the progress of the project, whether we are moving in the right direction or not. And we discussed one technique or the tool that is called the earned value management, and earned value management is helpful to assess our performance till date, and we can also estimate the cost and the schedule at the completion of the project based on the current performance. If we are behind the schedule, so we can take this data as our input and we can forecast that how much more time we will take to complete the project. Now we move to our today's topic, that is about project quality management. Before starting about the different concepts of quality management, we start with the one quite good joke. You might hear this joke before, and it is about the IT projects and the quality of IT projects. This joke highlights the quality of IT products that we have, and we just start with this text. At a recent computer exposition, this is that how the joke starts, that Bill Gates, the founder, hopefully you are aware of about the Bill Gates, founder of the Microsoft, stated that if General Motors had kept up with technology like the computer industry has, we would all be driving $25 cars that got 1000 miles to the gallon. और इसके रिस्पॉन्स में जो GM मोटर्स ने कमेंट किया, आल्दो कि इस जोक, लेकिन होपफुली आपको काफ़ी इसमें कुछ लर्निंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा इसको सुन के. If GM had developed technology like Microsoft, then what kind of problem we may have? So the first one, for no reason whatsoever, your car would crash twice a day. So it is not quite common nowadays, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो अक्सर ये हमें प्रॉब्लम रहता था जब विंडोज़ 95 और 98 था, तो उस वक्त वो अक्सर क्रैश कर जाते थे. तो quite interesting to have this statement. Second statement देखें, every time they repainted the lines on the road, you would have to buy a new car. And third one, occasionally your car would die on the freeway for no reason,
and you would just accept this, restart and drive on. तो ये भी आपने कई दफ़ा हो सकता है एक्सपीरियंस किया हो कि फॉर नो रीज़न जो है सिस्टम हैंग हो जाता है या कोई एप्लीकेशन हैंग हो जाती है एंड यू हैव टू रीस्टार्ट इट. Fourth one, occasionally executing a maneuver such as a left turn would cause your car to shut down and refuse to restart, in which case you would have to reinstall the engine. So again, मैंने तो कम से कम एक्सपीरियंस किया हो इस तरह से, हो सकता है आपने भी एक्सपीरियंस किया हो. सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है वो इस तरह से एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं. Only one person at a time could use the car unless you bought car 95 or car NT, but then you would have to buy more seats. और जो कार 95 और कार NT जो है ये टर्म्स विंडोज़ 95 और विंडोज़ NT जो अर्लियर वर्जन थे विंडोज़ के, उनको उसके साथ इसकी एनोलॉजी है जो कि यहाँ पे यूज़ की गई हैं ये टर्म्स. मैकिन्टॉश वुड मेक अ कार, दोबारा यहाँ से बोलो, Macintosh would make a car that was powered by the sun, reliable 5 times as fast and twice as easy to drive, but would run on only 5% of the roads. और अगेन ये एक हकीकत है कि जो Macintosh के सिस्टम पहले थे, अब काफ़ी हद तक जो कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो गए हैं और अब उनकी एप्लीकेशंस और भी जो कंपैटिबिलिटी है बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स वो काफ़ी बेहतर हो गई है. लेकिन कुछ साल पीछे अगर चले जाएं तो फिर क्या था कि वो उसकी एप्लीकेशंस और वो सिर्फ उनके सिस्टम्स पे चलेंगी और दूसरी एप्लीकेशंस को उन सिस्टम्स पे चलाना जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम था. आगे देखें, द ऑयल, वाटर टेम्परेचर एंड अल्टरनेटर वार्निंग लाइट्स वुड बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल जनरल कार डिफ़ॉल्ट वार्निंग लाइट. और ये भी एक कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है. द एयर बैग सिस्टम वुड से आर यू श्योर बिफोर गोइंग ऑफ. अच्छा, एक और देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ओकेजनली फॉर नो रीजन व्हाटसोएवर योर कार वुड लॉक यू आउट एंड रिफ्यूज टू लेट यू इन until you simultaneously lifted the door handle, turned the key and grabbed hold of the radio antenna. और ये अगेन जो आप देखें डिफरेंट आपकी फंक्शन कीज़ होती हैं, उनको आपने दूसरी कीज़ के साथ जो है सिमल्टेनियसली प्रेस करना होता है टू डू सम टास्क. और इसकी क्वाइट कॉमन एग्जांपल जैसे आल्ट कंट्रोल डेल प्रेस करते हैं आप तीनों कीज़ और टास्क मैनेजर आपके पास ओपन होता है विंडोज़ के केस में. तो क्वाइट इंटरेस्टिंग. और इसी तरह से और भी कुछ हैं और ये आप बुक में भी देख सकते हैं. IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो बुक है और उसका चैप्टर जो क्वालिटी मैनेजमेंट पे है ये उसमें पूरी डिटेल में लिखा है. और आखिरी एक देख लें, लास्ट पॉइंट, यू वुड प्रेस द स्टार्ट बटन टू शट ऑफ द इंजन. सो क्वाइट इंटरेस्टिंग. इस जोक से जो है वो हमें आइडिया होता है दैट वी आर स्टिल फार बिहाइंड इन क्वालिटी ऑफ IT प्रोडक्ट्स एज कम्पेयर टू अदर डोमेन्स. जैसे इसी जोक से देखें कि कार की जो डोमेन है, जो कार इंडस्ट्री है वो काफ़ी मैच्योर है और उनके स्टैंडर्ड्स और उनकी जो रेगुलेशंस हैं और उनकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा अच्छी जो है क्वालिटी प्रोडक्ट है एज़ कम्पेयर टू IT इंडस्ट्री. और IT इंडस्ट्री क्योंकि एज़ कम्पेयर टू द अदर इंडस्ट्रीज क्वाइट न्यू और इसलिए स्टिल इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और क्वालिटी के हवाले से स्टैंडर्ड्स और बाकी प्रैक्टिसेस जो है वो डिफ़ाइन हो रही हैं. और जैसे जैसे वो इंडस्ट्री उसको फॉलो करेगी होपफुली हमें ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेंगी. इन केस के अगर एप्लीकेशन या आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किसी भी वजह से डाउन हो जाता है तो उसकी क्या कॉस्ट आती है, उसके डाउन टाइम की क्या कॉस्ट है, ये अगर आप स्लाइड पे देखें तो डिफरेंट टाइप की जो एप्लीकेशंस हैं उनकी कॉस्ट पर मिनट जो है, ये स्टैंडिश ग्रुप की एक स्टडी है इन 2008, उसकी फिगर्स दी गई हैं. और देखें कि अगर सिक्योरिटी ट्रेडिंग है जो कि स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस होता है, अगर वहाँ पे एप्लीकेशन डाउन हो जाए तो $73,000 जो है उसकी पर मिनट उसकी कॉस्ट आएगी. इसी तरह से अगर ERP सिस्टम डाउन होगा तो 14,000, ऑर्डर प्रोसेसिंग है तो 13,000, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो आप करते हैं क्वाइट कॉमन है आजकल
उसकी कॉस्ट देखें दैट इज़ 12,000 प्लस। इसी तरह से अगर आप देखें इन केस ऑफ ईमेल, और ईमेल की भी जो डाउन टाइम है उसकी कास्ट अच्छी खासी है, एंड दैट इज़ $1900 पर मिनट। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्ट फ्री नहीं होगी, एरर फ्री नहीं होगी, अगर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं बनेगी, तो बाद में वो ज़्यादा हमें लॉस देगी और बाद में ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। तो अब हम बात करते हैं कि क्वालिटी है क्या। तो इसको अगर आप देखें, क्वालिटी को डिफ़ाइन किया जाए, ISO की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक इट इज़ द टोटलिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी दैट बियर ऑन इट्स एबिलिटी टू सैटिस्फाई स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड्स। इट मीन्स के समथिंग एसोसिएटेड विद द एंटिटी, कैरेक्टरिस्टिक उसको कह लें, और फिर वो कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट मस्ट फुलफिल सम नीड। तो इसी तरह से एक दूसरी डेफिनेशन है ISO की, दैट इज द डिग्री टू विच अ सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल रिक्वायरमेंट्स। कोई भी जो है रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का किस हद तक वो फुलफिल करती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी मेनली डील्स विद द कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स एंड फिटनेस फॉर यूज़। और एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि क्वालिटी के मतलब डिसाइड किसने करना है, वो है कस्टमर। कस्टमर हैज़ टू डिसाइड अबाउट द क्वालिटी, क्योंकि आखिर में एक्सेप्टेंस जो आपने लेनी है, जो आपने वेरीफाई कराना है, वो कस्टमर से करना है कि आपने जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स आपने डिलीवर किया है, प्रोडक्ट दी है। और फिर अगेन जब हमने ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट की बात की थी और हमने कहा था कि स्कोप, टाइम और कॉस्ट जो है 3 इम्पोर्टेंट कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और इसको हमें फुलफिल करना होता है सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो क्वालिटी इज़ आल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट, कि आप अगर इन टाइम करते हैं और अगर आप अकॉर्डिंग टू द बजट करते हैं, और लेकिन अगेन कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है, कस्टमर इज़ not willing to accept the product, then definitely your project and your repute is on the stake. तो इसीलिए quality is also quite important. हमने ये भी कहा था कि इसको quadruple भी कहते हैं, कि this one, I mean the quality is the 4th one constant to be considered. अब हम बात करते हैं मेन प्रोसेसेस की क्वालिटी मैनेजमेंट के, और क्वालिटी मैनेजमेंट को हमने डिटेल में डिस्कस करना है आने वाले लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इसको मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और फिर इसके बाद फिर हम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को देखेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर क्वालिटी के ऊपर डिटेल्स के अंदर लेक्चर होंगे जिसमें हम डिफरेंट टेस्टिंग स्ट्रेटजीज और भी रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। जो पहला की प्रोसेस है क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर, दैट इज प्लानिंग क्वालिटी, एंड वी हैव टू प्लान फॉर द क्वालिटी। व्हाट डज इट मीन? हमें देखना होगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि कस्टमर की तरफ से हैं, और उन रिक्वायरमेंट्स में वो प्रोडक्ट फीचर्स भी हो सकते हैं, फंक्शनैलिटी भी हो सकती है प्रोडक्ट की, और कुछ और फीचर्स भी हो सकते हैं जो कि कस्टमर को चाहिए, एंड प्लस सम regulations or standards that are defined at that time, or you have to fulfill those requirements, quality requirements. कोई स्टैंडर्ड है जिसको फुलफिल करना है, जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो बेस बनाया है, या आपने मेंशन किया है कि आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट बनाएंगे, तो आपने उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक ही प्रोडक्ट बनाना होगी। और फिर इसकी जो मेन आउटपुट है दैट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, और क्वालिटी मैट्रिक्स होते हैं, हाउ टू मेजर द क्वालिटी, और उसके लिए डेफिनेटली आपको कुछ मैट्रिक्स डिफाइन करने होंगे। और फिर क्वालिटी चेकलिस्ट होती हैं, जब आप इंस्पेक्शंस करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दोज चेकलिस्ट यू हैव टू डू इट। और फिर सेकंड जो इसके अंदर की प्रोसेस है दैट इज़ परफॉर्मिंग क्वालिटी एश्योरेंस। और परफॉर्मिंग क्वालिटी एश्योरेंस वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि टाइम टू टाइम आप करते हैं टू एवेलुएट द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस।
और इसके अंदर जो है आप अपडेट क्या होती है या आउटपुट क्या होती है, सॉरी, वो होती है अपडेटेड क्वालिटी प्लान होते हैं, मैनेजमेंट प्लान जो आपने बनाया। अगर उसमें चेंजेस हैं, अगर आप समझते हैं कि कुछ रीवर्क होने वाला है, तो डेफिनेटली आप चेंज रिक्वेस्ट को जनरेट करते हैं और फिर अकॉर्डिंग जो भी प्रोसीजर्स है उसका चेंज कंट्रोल बोर्ड के थ्रू उसको अपडेट करेंगे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को। अगर वो अप्रूव होती है चेंज और अगर रिजेक्ट होती है तो फिर उसको जस्ट डिस्कार्ड करेंगे। तो यू हैव टू चेक इट। तीसरा जो की प्रोसेस है दैट इज़ परफॉर्मिंग क्वालिटी कंट्रोल, और इसके अंदर अगेन मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। जब भी हम कंट्रोल की बात करते हैं तो हम प्रोग्रेस एवेलुएशन की या असेसमेंट की बात करते हैं। और अगेन इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट तरह के जो आप जो भी टास्क हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो डिलीवरेबल्स जो रेडी हो रहे हैं, तो उसको आप जो है देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या जो भी स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए, सेट किए गए प्रोसीजर्स उसके मुताबिक है या नहीं है। और फिर अल्टीमेटली जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, वो वैलिडेटेड आपके डिलीवरेबल्स होते हैं। इस स्लाइड के ऊपर हमने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी इन आईटी प्रोजेक्ट्स। और फर्स्ट वन इज़ द लीडरशिप, कि लीडरशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफ़ द लीडरशिप इज़ क्वालिटी माइंडेड, टॉप मैनेजमेंट इज़ क्वालिटी माइंडेड, क्वालिटी को वो प्रेफरेंस देते हैं और करके दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड गाइडलाइंस, आर्ट स्टैंडर्ड्स। और बाकी जो फिर जो टीम है, प्रोजेक्ट टीम है, या जो बाकी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी क्वालिटी को उसी तरह से कंसीडर करते हैं। अगर क्वालिटी प्रायोरिटी नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टॉप मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो नीचे भी जो टीम्स हैं, जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, वो भी उसको उस तरह से कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टॉप मैनेजमेंट जो है क्वालिटी को प्रायोरिटाइज करे, क्वालिटी को कंसीडर करे कि क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, तो डेफिनेटली जो टीम्स हैं वो भी वैसे ही परफॉर्म करेंगी। और फिर अगेन क्वालिटी ऐसा नहीं है दैट इज़ लाइक जस्ट फॉर ग्रांटेड, बल्कि क्वालिटी की अपनी एक कॉस्ट है। यू हैव टू हैव सम एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग द क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, और फिर उसके अंदर जो है हम उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्वालिटी की जो कॉस्ट है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस एंड नॉन कन्फॉर्मेंस, कि जब आप मेक श्योर करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो एरर फ्री हो, तो उस पर भी कोई कॉस्ट आएगी। और अगर आपकी प्रोडक्ट डिलीवर होती है, डिप्लॉय होती है, और उसके अंदर कुछ बग्स हैं, और फिर जब बाद में आपने उसको फिर अगेन रिपेयर करना है, अगेन आपने उसको जो है उसके ऊपर मेंटेनेंस जो है कॉस्ट आएगी, दैट इज़ आल्सो द क्वालिटी कॉस्ट। और फिर डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं इन जनरल जो डिस्क्राइब की जाती हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रिवेंशन कॉस्ट, और प्रिवेंशन कॉस्ट जो है it is quite easy to understand कि when we want to prevent the errors, when we want to deliver error free product and we do some activities, तो उनकी जो cost है that is prevention cost। appraisal cost है, appraisal cost के अंदर भी जो आप different activities perform करते हैं, जो different आपके पास प्रोसीजर्स हैं जो आपने डिफ़ाइन किए हैं, और अकॉर्डिंग टू दोज प्रोसीजर्स जब आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो वो अप्रेजल कॉस्ट में आती है। और इसी तरह से इंटरनल फेलियर कॉस्ट, जब अभी प्रोडक्ट आपके एंड के ऊपर है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और आपने डिप्लॉय नहीं किया और उसमें कोई प्रॉब्लम्स आते हैं एंड यू हैव टू फिक्स दोज प्रॉब्लम्स, and whatever is the cost bear on those problems to fix those problems, that is the internal failure cost. And once you deploy the product and you face problems, I mean your client face the problem, then you have to fix again, and the cost after the deployment to fix those bugs is the external failure cost. और इसी तरह से measurement and test equipment cost, और मेजरमेंट और टेस्ट इक्विपमेंट कास्ट जो है वो ऊपर जो प्रिवेंशन कॉस्ट है और जो अप्रेजल कॉस्ट है, मतलब इन अदर वर्ड्स जो क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट है और क्वालिटी एश्योरेंस की कॉस्ट है, दोज ऑल कॉस्ट आर
included in measurement and test equipment cost. और फिर एक और चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, दैट इज़ डिफरेंस ऑफ कल्चर्स. जो एक्सपेक्टेशंस हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, डिफरेंट कंट्रीज़ की, डिफरेंट कल्चर्स की, वो भी क्वालिटी के हवाले से डिफ़र करती हैं. और इसी तरह से जो कल्चर्स हैं डिफरेंट जो कंट्रीज़ के ख़ास तौर पे क्वालिटी के हवाले से वो भी डिफरेंट हो सकते हैं. तो अब ये इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है जिनके लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपके जो कस्टमर हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, उसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा. और फिर अगेन सिर्फ प्रोडक्ट के हवाले से नहीं क्वालिटी की बात, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी का कल्चर आपने इंट्रोड्यूस कराना है तो अगेन आपको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा. स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग सम प्रोजेक्ट दैट इज़ आउटसोर्स्ड, तो उसके अंदर वर्चुअल टीम्स होंगी, उसके अंदर डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग होंगे. उनको अंडरस्टैंड करना और उनको उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उनके वर्क एथिक्स हैं, वो डेफिनेटली जो है वो रिलेट करते हैं इन जनरल आपकी जो वर्क क्वालिटी है उसके साथ. और फिर इसी तरह से मैच्योरिटी मॉडल्स हैं, क्वालिटी फ्रेमवर्क्स हैं दैट आर प्रपोज्ड फॉर डिफरेंट डोमेन्स एंड सिमिलरली फॉर आईटी डोमेन. आईटी जो इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, उसके लिए भी है. क्वाइट कॉमन एग्जांपल इज CMMI, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल. और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसको फॉलो करती हैं और इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं to establish the quality culture or to have good practices within your organizations related to the quality management. और definitely जब आप उन practices को follow करते हैं तो आप एक अच्छी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं. एक स्टडी कंडक्ट की गई, डी मार्को एंड लिस्टर ने इस स्टडी को जो है वो कंडक्ट किया. इसके अंदर उन्होंने 600 प्लस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को इंगेज किया फ्रॉम 92 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उन्होंने डिफरेंट गेम्स डेवलप की और इट टुक सेवरल इयर्स टू कंप्लीट दिस स्टडी. और फिर उसके बाद दे tried to find out the relationship between the productivity and other factors like programming language, skill of the programmer. लेकिन जो उनकी फाइंडिंग है वो that are quite interesting. और उसमें देखें कि उन्होंने कहा कि productivity varied from by a factor of about 1 to 10 across the participants. What does it mean? कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की टीम थी उनके अंदर जो उनकी प्रोडक्टिविटी थी उसने काफ़ी वेरी किया. सपोज जो एक टीम ने कोई एक टास्क एक दिन में किया तो 10 टीम अगर हैं तो 10 टीमों ने डिफरेंट टाइम के ऊपर किसी ने एक दिन में परफॉर्म किया, किसी ने 2 दिन में एंड सो ऑन, किसी टीम ने 10 दिन में परफॉर्म किया. लेकिन जो दूसरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है दैट इज productivity varied by an average of 21% between pairs of programmers from the same organization. कि जो सेम ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स थे उनकी प्रोडक्टिविटी के अंदर जो वेरिएशन थी दैट वाज ओनली 21%, नॉट मोर देन 21%. इट मीन्स कि अगर किसी एक टीम ने एक दिन के अंदर एक्टिविटी परफॉर्म की तो उसी ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी टीम ने उसके ऊपर 1.21 डेज उसको उस एक्टिविटी को परफॉर्म किया. तो जो इसका जिसकी फाइंडिंग है, की फाइंडिंग है, दैट इज नो कोरिलेशन बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी. और ये क्वाइट इंटरेस्टिंग कि जो प्रोडक्टिविटी है वो डायरेक्टली रिलेट नहीं करती, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है प्रोग्रामिंग के साथ और उसके एक्सपीरियंस और सैलरी के साथ, बल्कि प्रोडक्टिविटी का जो डायरेक्ट रिलेशन है दैट इज विद डेडिकेटेड वर्क स्पेस एंड क्वाइट वर्क इन्वायरमेंट्स. कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है, जो इन्वायरमेंट जो है, जो वर्क स्पेस जो है वो ज़्यादा अच्छी है तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी. ये इस स्टडी की फाइंडिंग है और यह हमें बताती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट टूवर्ड्स क्वालिटी
ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट जो है दैट इज द की फैक्टर in that participate in the less or more productivity or less or more productive staff. तो हमें इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि क्वालिटी के ऊपर हमारे बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले दिनों में होंगे, हम उस पर और फर्दर डिटेल में क्वालिटी को देखेंगे। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की, और कम्युनिकेशन जो है मैंने पहले लेक्चर्स में भी कहा it is quite important. अगर if you are failed to communicate then it means you are fail in your project, और अक्सर जो प्रोजेक्ट फेल होते हैं वो पुअर कम्युनिकेशन की वजह से होते हैं। और ये देखें इस स्लाइड के ऊपर कि कम्युनिकेशन फेलियर इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट फॉर आईटी प्रोजेक्ट सक्सेस। दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट कि कम्युनिकेशन प्रॉपरली होनी चाहिए, अदरवाइज इट इज क्वाइट कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट थ्रेट। लेकिन स्पेशली आईटी प्रोजेक्ट्स के अंदर इसकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और फिर ये भी एक स्टडी हमने पहले डिस्कस की थी, और आप इसके ऊपर गूगल कर सकते हैं और डिफरेंट स्टडीज़ आपको मिल जाएंगी कि आईटी प्रोफेशनल्स आर नॉट गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स। They are good in their technical skills, but they are poor in their communication skills. तो इसको भी हमें देखने की ज़रूरत है कि कैसे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, और इस पे आगे हम बात करेंगे। तो प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर टाइमली एंड अप्रोप्रिएट जनरेशन, कलेक्शन, डिसमिनेशन, स्टोरेज एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। कि इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट होगी और कैसे टाइमली मैनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, और डेफिनेटली सही लोगों को, राइट जो रिसिपिएंट है उनको टाइमली मैनर के अंदर वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट और कन्वे होनी चाहिए। ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस का। की प्रोसेसेस प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के, द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स, देन प्लानिंग कम्युनिकेशंस, distributing information, managing stakeholder expectations, reporting performance। अब हम वन बाय वन इनको डिटेल में देखते हैं कि इसके क्या कुछ इसके अंदर इम्पोर्टेंट कंसर्न्स हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स। और स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई क्यों करना ज़रूरी है? हमने स्टेक होल्डर्स पे पहले भी बात की कि स्टेक होल्डर्स आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आपके इवन जो ओपोनेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट्स के, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हों, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपके ओपोनेंट हो सकते हैं, वो सारे आपके स्टेक होल्डर्स हैं। और उनको जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर उसके मतलब आइडेंटिफाई किए बगैर कम्युनिकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और किन को कम्युनिकेट करना है, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एंड वंस वी डिसाइड एंड वी आइडेंटिफाई अबाउट प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स, वी हैव टू डिफाइन एंड डिसाइड अबाउट द कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। आइदर वी नीड फॉर्मल नेटवर्क्स और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट को आप फॉर्मली इन्फॉर्म करेंगे थ्रू सम काइंड ऑफ रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिटन फॉर्म के अंदर आप उसको कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन आपके कुछ और डिपार्टमेंट के अंदर दूसरे हो सकता है कि आपके कोलीग्स हों, वो भी स्टेक होल्डर्स हों, उनको आप जो है आपकी टीम के मेंबर्स हों, और उनको आप इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेट कर दें, लंच के ऊपर गपशप करते हुए आप उसको कम्युनिकेट कर दें। इसी तरह से हो सकता है कि आपके क्लाइंट हैं और क्लाइंट को जो है आप किसी फॉर्मल मीटिंग के अंदर वर्बली इन्फॉर्म करें या फिर उसको थ्रू ईमेल करें। तो इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। और फिर वी हैव टू क्रिएट स्टेक होल्डर रजिस्टर। और रजिस्टर क्या है? एक डॉक्यूमेंट है दैट लिस्ट डाउन द ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड देन व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, क्या कुछ उन्हें अपडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड देन हाउ टू कम्युनिकेट इट। ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेक होल्डर रजिस्टर के अंदर होती हैं। एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी वी नीड टू डिफाइन इट, कि अब किस तरह से
स्टेक होल्डर को आपने कम्युनिकेट करना है, उसके साथ डील करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एंड वी परफॉर्म स्टेक होल्डर एनालिसिस। स्टेक होल्डर एनालिसिस के अंदर भी वही चीज़ है कि आप देखते हैं कि स्टेक होल्डर्स क्या क्या इंटरेस्ट है उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि हर एक का एक ही लेवल ऑफ इंटरेस्ट होगा, डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोग होंगे प्रोजेक्ट के अंदर जो कि स्टेक होल्डर्स होंगे, तो उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनको कम्युनिकेट करना, अपडेट करना अबाउट द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, ये इंतहाई ज़रूरी है। इस स्लाइड के ऊपर देखें, एक सैम्पल जो है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी दी गई है और इसके अंदर जो की एंट्रीज हैं वो देखें। टॉप जो रो है, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स नेम, देन हिज और हर पोजीशन, और उसके बाद उसका रोल डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेक होल्डर, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है। और फिर उसके बाद लेवल ऑफ इंटरेस्ट, हाई है, लो है, मीडियम है। फिर लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस कि वो प्रोजेक्ट को कितना उसका प्रोजेक्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस है। टॉप मैनेजमेंट है, डेफिनेटली उनका इन्फ्लुएंस हाई होगा। कोई आपका कोलीग है, टीम मेंबर है, उसका इन्फ्लुएंस प्रोजेक्ट के ऊपर लो होगा। और फिर पोटेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, और पोटेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर आप बताते हैं कि कैसे उसको कम्युनिकेट किया जाएगा, कैसे उसके साथ डील किया जाएगा। और पहली एग्जांपल देखें कि प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर इंटरनल है, उसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस दोनों हाई है। और पोटेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर देखें कि जॉन डज अ ग्रेट जॉब बट ही ऑफन अपसेट्स अदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स विद हिज हार्श अप्रोच, कीप हिम इन लाइन एंड रिमाइंड हिम ही इज पार्ट ऑफ ए बिगर टीम। कि अब जॉन के बारे में बताया गया है कि ही इज क्वाइट गुड इन हिज जॉब, लेकिन उसका बिहेवियर जो दूसरों के साथ है वो इतना अच्छा नहीं होता। तो अब जो टॉप मैनेजमेंट है उसको चाहिए होगा कि वो उसको फ्रीक्वेंटली जो है रिमाइंड कराती रहे कि ही इज पार्ट ऑफ द बिगर प्रोजेक्ट, और उसको केयर करनी चाहिए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जब आप इस तरह से स्टेक होल्डर रजिस्टर बनाते हैं और स्ट्रेटजी डिफाइन करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक होगी। स्टेक होल्डर रजिस्टर पब्लिक हो सकता है, लेकिन इस तरह की जो स्ट्रेटजी आप डिफाइन कर रहे हैं कि हाउ टू डील विद दोज स्टेक होल्डर्स, ये कॉन्फिडेंशियल है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये इसको रिटन फॉर्म में होना चाहिए। हो सकता है कि आप टॉप मैनेजमेंट बैठ के डिसाइड करें, वर्बली डिसाइड करें कि हाउ टू डील विद की स्टेक होल्डर्स। तो हमें इसको मतलब देखना होगा कि कितनी सेंसिटिव ये इंफॉर्मेशन है और क्या इसको पब्लिक होना चाहिए या कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, या क्या इसको रिटन फॉर्म में होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। Another key process in communication management is planning communications. We have to plan for the communication, और communication management plan जो है वो उसकी एक डॉक्यूमेंट है, आउटपुट है। और फिर इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है कम्युनिकेशन प्लान के अंदर। फर्स्ट वन ये है कि ये तो गाइड है, काइंड ऑफ गाइड डॉक्यूमेंट है जो कि आपको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट बताएगा कि कैसे कम्युनिकेट करना है, किसको कम्युनिकेट करना है। एंड देन इट डिस्क्राइब्स द स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स। किसी को वीकली जो है अपडेट चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए प्रोजेक्ट के हवाले से, एंड मे बी सम अदर स्टेक होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन मंथली रिपोर्ट, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट में। तो डिपेंड करता है कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड डेफिनेटली इसके अंदर हम लिस्ट डाउन करते हैं कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट होनी है, और फिर उसके साथ ये कि कौन वो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा और कौन किसको वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, कौन उसका रिसीवर होगा। और जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन की जाती है या जो कम्युनिकेट किए जाते हैं उनके अपने फॉर्मेट्स होते हैं, और उन फॉर्मेट्स के थ्रू जो है जो कम्युनिकेट करना है, जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, दैट इज़ रिलेटिवली ईजी। और अगेन हम बात करते हैं कि मेथड्स, और मेथड्स के अंदर हम सजेस्ट करते हैं कि भाई कौन से मेथड्स किस स्टेक होल्डर के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं। और फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन की बात मैंने की कि कोई मे बी के एक स्टेक होल्डर मंथली
प्रोग्रेस में इंटरेस्टेड है तो दूसरे को कोई और स्पेसिफिक कम्युनिकेशन वीकली जो है वो अपडेट करनी है। और फिर अगर कोई इश्यूज जो है वो अगर होते हैं तो उनको कैसे हमने रिजॉल्व करना है, ये भी जो है कम्युनिकेशन प्लान के अंदर होना चाहिए। एंड वी मस्ट हैव सम प्रोसीजर्स टू रिवाइज द प्लान। अगर कोई एक प्लान ए जो है सक्सेसफुल नहीं है, किसी एक तरह से किसी एक मेथड से इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेशन नीड्स पूरी नहीं हो रही, तो हमें उसको रिवाइज करने में कोई हर्ज नहीं है। और डेफिनेटली जो कॉमन टर्मिनोलॉजी जो है यूज़ हुई है दैट मस्ट बी पार्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। इस स्लाइड के ऊपर देखें, ये एक एग्जांपल है कि कम्युनिकेशन एनालिसिस किस तरह से हो सकता है। और इसके अंदर देखें कि एंट्रीज स्टेक होल्डर्स की लिस्ट है एंड देन डॉक्यूमेंट नेम है दैट शुड बी कम्युनिकेटेड। और फिर उस डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है कि वो हार्ड फॉर्म में होगा, वो सॉफ्ट फॉर्म में होगा, या वो मीटिंग के थ्रू होगा, ठीक। और फिर कॉन्टैक्ट पर्सन है, और कॉन्टैक्ट पर्सन जो है दैट इज द की पर्सन्स। और इसको वो पहले जो हमने बात की यहाँ पे पहला जो कॉलम है वो इनफैक्ट नेम्स नहीं है, वो स्टेक होल्डर्स के डिपार्टमेंट्स हैं। और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है की पर्सन जिनको हमने कांटेक्ट करना है, जिनको हमने अपडेट करना है, इन्फॉर्म करना है, वो हैं। और साथ ही ड्यू डेट बताई गई है कि कब कब किस किस टाइम के ऊपर जो है इनको ये कम्युनिकेट किया जाएगा। तो अब पहली एग्जांपल देखें कि कस्टमर मैनेजमेंट जो है ये स्टेक होल्डर है डिपार्टमेंट, और इसको मंथली स्टेटस रिपोर्ट चाहिए। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है वो हार्ड कॉपी होना चाहिए एंड दे आल्सो नीड मीटिंग। और उसके अंदर जो भी कंसर्न लोग हैं उनके नाम, टाइटल और फिर डेट बताइए कि 1st of every month उनको ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है। Another key process of communication management is distributing information, और key point is information to the right people should be communicated at the right time। और हमें ये भी देखना होगा इसमें कि हम क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो टूल्स हैं, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं और बताते हैं कि कौन से स्टेक होल्डर की क्या रिक्वायरमेंट है। और ऑब्वियसली फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड्स दोनों हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप अपने कोलीग्स को जो है वो लंच के ऊपर भी इनफॉर्मल डिस्कशन कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम नीड्स गुड स्किल्स टू कम्युनिकेट। जब आपने वर्बल कम्युनिकेशन करनी है, जब आपने प्रेजेंट करना है अपने प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, तो आपको आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल हैं वो अच्छे होने चाहिए। आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करें, ऐसा ना हो कि आप जो कन्वे करना चाह रहे हैं वो प्रॉपर्ली कन्वे ना हो और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। इसी तरह से इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये एक और की पॉइंट है कि इंफॉर्मेशन प्रॉपर जो है आपने कन्वे की है, लेकिन अगर वो टाइम के ऊपर कन्वे नहीं की है और वो जो मीडियम आपने यूज़ किया है वो इतना इफेक्टिव नहीं था उसको कम्युनिकेट करने में, तो ये भी कुछ अच्छी बात नहीं है। सपोज करें कि एक नोटिस है और वो नोटिस जो है ऑफिस के अंदर आपने सब तक उसकी इंफॉर्मेशन आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और ईमेल की बजाय आप उसको किसी नोटिस बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले करते हैं, तो क्वाइट पॉसिबल कि 10 लोग जो है उसको देखें और 10 जो है वो उसको नोटिस ही ना करें, उसको उनकी नज़र से जो है वो ओवरलुक हो जाए। तो इट मीन्स कि आपने जो है इंफॉर्मेशन तो कन्वे की है, लेकिन जो मीडियम उसके यूज़ की है दैट वाज नॉट गुड इन दैट सिनेरियो। फेस टू फेस इंटरेक्शन क्वाइट इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर डिफरेंट स्टडीज़ कंडक्ट हुई हैं कि फ़ेस टू फेस जब आपकी फ़िज़िकल मीटिंग होती है तो उसके अंदर ज़्यादा जो है आपकी इफेक्टिव इंटरेक्शन होती है और मैसेज कन्वे होता है। और एक जो स्टडी की फाइंडिंग है वो ये है कि 58% बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, 35% जो आपके जो वर्ड्स होते हैं जो आप डिलीवर करते हैं वो जब बोलते हैं तो उसके थ्रू मैसेज कन्वे होता है, और जो बाकी जो रिमेनिंग 7% जो है मैसेज कन्वे होता है दैट इज़ द कंटेंट्स। तो कंटेंट्स की वेटेज जो है वो बहुत कम है और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है और किस तरह से आप जो डिलीवर करते हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
तो हमें अगेन आईटी प्रोफेशनल्स को कम्युनिकेशन के अंदर ज़्यादा जो है ट्रेनिंग और स्किल की ज़रूरत होती है। इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट मीटिंग्स। अगर ज़्यादा लंबी चौड़ी मीटिंग होगी तो वो भी नहीं है, और बहुत फ्रीक्वेंट भी मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मीटिंग जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ख़ासतौर पे जो टॉप मैनेजमेंट और जो की लोग की स्टेक होल्डर्स हैं, उनका इकट्ठा होना जो है वो इतना ईजी नहीं होता। अगेन जब इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो मीडियम सिलेक्शन जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इंडिविजुअल एंड ग्रुप नीड्स आर डिफरेंट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दोज इंडिविजुअल एंड ग्रुप नीड्स। और इसके अंदर एक जो थ्योरी है दैट इज़ फ्रॉम द बुक द मिथिकल मैन मंथ, ब्रूक्स की बुक है, और उसके अंदर वो कहता है कि पीपल आर नॉट इंटरचेंजेबल पार्ट्स। इट मीन्स कि आप जो है एक बंदे को दूसरे बंदे से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज़, डिफरेंट रेट्स, और उनकी अपनी अपनी कम्युनिकेशन की जो है वो रिक्वायरमेंट्स होंगी या अपने अपनी कम्युनिकेशन के स्टाइल होंगे। तो इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि एक जो है प्रोग्रामर को हटा के दूसरा प्रोग्रामर लगा दें और उसी टाइम के अंदर वो टास्क हो जाएगा, तो हो सकता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि उसको जो नेक्स्ट जो नया प्रोग्रामर है उसको अगेन अंडरस्टैंड करना होगा उस प्रोजेक्ट को, और उसके अंदर जो कम्युनिकेशन जो अंडरस्टैंडिंग है विद इन द ग्रुप विद इन द टीम, उसको दोबारा से जो है एस्टेब्लिश करना होगा एंड इट विल टेक टाइम। तो इसीलिए अक्सर ऐसा भी होता है कि जब आप प्रोजेक्ट जो है वो बिहाइंड द स्केड्यूल है और आप अगर ये सोचते हैं कि कुछ और प्रोग्रामर्स ऐड करके आप जो ऑन टाइम डिलीवर कर लेंगे, क्वाइट पॉसिबल कि ये जो एडिशन है प्रोग्रामर्स का ये इसको मज़ीद लेट कर दें, बिकॉज ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आर कम्युनिकेशन नीड्स आर द टाइम दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड आर हैव गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर विद इन द टीम। ओपन डायलॉग जो है वो उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए, और उसके अंदर डिफरेंट ओपिनियंस हैं वो सामने आती हैं, अल्टरनेट्स डिस्कस होते हैं, और ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट के लिए इन लॉन्ग रन अच्छा हो सकता है। और अगेन ज्योग्राफिकल लोकेशन जो अगर डिफरेंट होगी, कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट होंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन नीड भी चेंज हो जाएंगी। और जब आप वर्चुअल टीम्स में काम कर रहे हैं तो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जो आपका दूसरा टीम मेंबर है जो कि रिमोट लोकेशन के ऊपर है, उसका डिफरेंट कल्चर है, उसका डिफरेंट बैकग्राउंड है, तो उसके साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा। कुछ जगहों के ऊपर इनफॉर्मल बोला जाता है, कुछ जगहों के ऊपर बहुत फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, तो इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर कंसर्न है, जब आपने इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यू हैव टू सेट द स्टेज फॉर बैड न्यूज़। व्हाट डज इट मीन कि अगेन कि मैनेजमेंट को सरप्राइजेस पसंद नहीं होते, और अगर कोई बैड न्यूज़ है रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस तो आपको जस्टिफाई करना होगा। आपको पहले उसके लिए आर्गूमेंट्स देखने होंगे, उसके लिए लॉजिकल रीजनिंग देखनी होगी, और फिर उसके बाद आपको उसके सारे प्लस माइनस के साथ बात करनी होगी, और वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा स्टेक होल्डर्स को जब आप ट्रस्ट में लेंगे। अदरवाइज अगर आप किसी भी बैड न्यूज़ को रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ऐसे ही बस जस्ट कम्युनिकेट करेंगे विदाउट प्रॉपर रीजनिंग, तो उसका डेफिनेटली नेगेटिव इफेक्ट होगा आपके बिजनेस के ऊपर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और आपके स्टेक होल्डर्स के ऊपर, मेनली कस्टमर के ऊपर। Another key point is the number of communication channels. You have to determine, you have to calculate when you are building the teams. You have to decide how many team members are sufficient in a single team. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग जो है फिनोमिना है कि जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे कम्युनिकेशन चैनल बढ़ते हैं, और जब टीम छोटी होती है ओनली 2 or 3 टीम मेंबर्स, तो कम्युनिकेशन चैनल्स बहुत कम होते हैं। लेकिन जैसे ही लोग आप थोड़े से बढ़ाते हैं, टीम मेंबर्स थोड़े बढ़ते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो रैपिडली बढ़ते हैं, और इसको हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं।
पहले इस एग्जांपल को देखने से पहले यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर देखें, एक एग्जांपल दी गई है कि डिफरेंट जो मीडियम है कम्युनिकेशन के, उसको जो है एवेलुएट किया गया है कि डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर। अगर आप फर्स्ट वन देखें कि असेसिंग कमिटमेंट, अगर आप इसके अंदर देखें ये एक फैक्टर दिया गया है, और इस अगर आपने किसी की कमिटमेंट को असेस करना है तो उसके लिए क्या मीडियम ज़्यादा बेहतर है। देखें हार्ड कॉपी जो है दैट इज़ इनअप्रोप्रिएट, लेकिन आगे देखें मीटिंग के अगेंस्ट वन लिखा हुआ है। इट मीन्स कि मीटिंग इज़ द एक्सीलेंट मीडियम इफ़ यू वांट टू असेस समवन्स कमिटमेंट। आपको एक और एग्जांपल देखें, रिजॉल्विंग अ मिसअंडरस्टैंडिंग। रिजॉल्विंग अ मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए जो है अगेन हार्ड कॉपी नहीं चलेगी, कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है, वॉइस मेल भी नहीं चलेगी, लेकिन फ़ोन कॉल के ऊपर अगर आपको फिजिकल मीटिंग नहीं कर सकते, देखिए मीटिंग के ऊपर भी टू लिखा हुआ है, और इट इज़ आल्सो एडिकेट टू रिजॉल्व द मिसअंडरस्टैंडिंग, यू अरेंज द मीटिंग। लेकिन अगर आप मीटिंग अरेंज नहीं कर सकते तो फ़ोन कॉल के थ्रू भी डायरेक्ट जब आप बात करेंगे तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। और इसी तरह से आप और भी इस टेबल को, जो कि ये पेज नंबर 392 के ऊपर दिया गया है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। अब इस स्लाइड को देखें, इस स्लाइड में नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स की बात की गई है, और वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स विद सिंपल फार्मूला दैट इज गिवन ऑन द टॉप ऑफ दिस फिगर कि n into n-1 divided by 2, n is the number of people involved in the communication। और यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में इस फिगर में दिखाया गया है कि 2 people then only 1 communication channel। If there are 3 team members they have 3 communication channels। लेकिन अब देखें if we add 1 more team member, और अब टीम मेंबर 4 हो गए, लेकिन कम्युनिकेशन चैनल जो है वो 3 से 4 की बजाय 3 से 6 हो गए, डबल हो गए। तो ये क्वाइट रैपिड ग्रोथ है। तो ये फिगर आपको बड़ी हेल्प करेगी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि अगर प्रोजेक्ट किसी वजह से डिले हो रहा है और आप स्केड्यूल से पीछे हैं, तो ऑन टाइम उसको करने के लिए आप सिर्फ अभी जो हमने बात की थी मैथिकल मैन मंथ्स की, क्या ये नहीं हो सकता कि आप 10 बंदे और डाल लें और वो जल्दी हो जाएगा। इसकी एग्जांपल ऐसे भी देते हैं कि जैसे एक ड्राइवर है, एक कार ड्राइवर है, और वो एक डिस्टेंस जो है लेट्स से 200 किलोमीटर्स, वो 2 आवर्स में उसको कवर करता है, ड्राइव करता है 2 आवर्स, तो वो उस डिस्टेंस को इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है। तो अगर अब 2 ड्राइवर मिल जाएं, 2 डिफरेंट गाड़ियों के अंदर वो ड्राइव करें, तो 2 मिल के या एक ही गाड़ी में दोनों बैठ जाएं, तो तब भी वो 200 किलोमीटर्स 1 घंटे में नहीं हो सकते, हाफ टाइम में नहीं हो सकते। अगेन दे नीड 2 आवर्स टू ड्राइव। तो इसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। अनदर की प्रोसेस इज मैनेजिंग स्टेक होल्डर्स। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? डेफिनेटली हमने अगेन ट्रिपल कॉन्स्टेंट की बात करेंगे, स्केड्यूल, कॉस्ट और टाइम की। और अक्सर जो है प्रोजेक्ट्स आम तौर पे विद रिस्पेक्ट टू दीज 3 कॉन्स्टेंट्स चेंज होते हैं, और जब कोई चेंज आएगी स्केड्यूल के हवाले से और कॉस्ट के हवाले से, तो आपको या स्कोप के हवाले से, तो आपको कम्युनिकेट करना होगा। यू नीड परमिशन फ्रॉम द स्पॉन्सर, फ्रॉम द कस्टमर, और उसके लिए डेफिनेटली आपको अगेन के कम्युनिकेशन स्किल आपके अच्छे होने चाहिए। और फिर जब आपने पहले से चीज़ों को प्लान किया होगा कि किस स्टेक होल्डर की क्या जो है रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह से उसको कम्युनिकेट करना है और किस तरह से उसको डील करना है, तो फिर ज़्यादा इफेक्टिव होगी आपकी कम्युनिकेशन, और वो जो भी आप अपडेट्स कराना चाह रहे हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स जो होते हैं वो आमतौर पे अपने जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं रिलेटेड टू द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, वो हाईलाइट करते हैं, वो डॉक्यूमेंट करते हैं या वो कन्वे करते हैं। लेट्स से कि किसी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर की जो है वो की रिक्वायरमेंट ये है कि इसको ऑन टाइम कंप्लीट होना चाहिए,
तो ऑन टाइम कंप्लीट होना उसका की इंटरेस्ट है। तो अगर उसके लिए आप कॉस्ट को थोड़ा बढ़ा भी देते हैं तो और उसको प्रॉपरली निगोशिएट करते हैं और प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि की जो रिक्वायरमेंट है स्टेक होल्डर की कॉन्स्टेंट जो है वो क्या है, तो आप उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए आप जो है एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट मैट्रिक्स, और इसके अंदर आप जो है डिफरेंट सक्सेस मेजर्स देते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ देते हैं, और फिर अगेन एक्सपेक्टेशंस और गाइडलाइंस होती हैं हाउ टू डील इट। ठीक है, और ये हमें हेल्प करता है डिफरेंट इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में। इस स्लाइड के ऊपर देखें एक एग्जांपल है एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट मैट्रिक्स की, और इसके अंदर देखें स्कोप को प्रायोरिटी में नंबर 2 दिया गया है। इट मीन्स कि उसकी प्रायोरिटी टाइम से कम है, टाइम को नंबर 1 दिया गया है, नंबर 1 रैंक किया गया है। और एक्सपेक्टेशंस पे अगर आप देखें तो स्कोप स्टेटमेंट क्लियरली डिफाइन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड ऑप्शनल रिक्वायरमेंट्स, कि जो भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं और ऑप्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं दोनों बड़ी क्लियरली डिफाइन है। तो गाइडलाइन क्या दी गई है, फोकस ऑन मीटिंग मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स बिफोर कंसीडरिंग ऑप्शनल वंस। ऑब्वियस सी बात है कि पहले मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल करेंगे। ये गाइडलाइन है एक्सपेक्टेशंस को जो है प्रॉपरली हैंडल करने के लिए। जब वंस यू आर डन विद द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स देन यू गो फॉर ऑप्शनल रिक्वायरमेंट्स। इसी तरह से अगर टाइम को देखें तो टाइम के हवाले से नंबर 1 प्रायोरिटी है, देयर इज नो गिव इन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट। इट मीन्स कि कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो आप गाइडलाइन में देखें द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर एंड प्रोग्राम मैनेजर मस्ट बी अलर्टेड if there are any issues that might affect meeting schedule goals। तो आपको अपडेट करना होगा in a proper way if you feel कि आपका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। बाकी भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। Another key process is reporting performance, और रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस में अगेन आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की बात आ रही है, और इसके अंदर जब आप डिफरेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो होती हैं या और डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो टाइम टू टाइम बनते हैं और कम्युनिकेट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे होती है और स्टेक होल्डर्स भी ऑन द बोर्ड होते हैं। और इसके अंदर जो है मेन डॉक्यूमेंट्स क्या है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स होती हैं, और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स को अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज स्टेटस रिपोर्ट्स, और स्टेटस रिपोर्ट्स के अंदर आप ये बताते हैं कि वेयर द प्रोजेक्ट स्टैंड्स इन टर्म्स ऑफ स्कोप, स्केड्यूल एंड कॉस्ट। और जब आप प्रोग्रेस रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बेसिकली व्हाट यू हैव अकम्प्लिश्ड, टीम मेंबर्स के हवाले से और लोगों के हवाले से जो प्रोग्रेस होती है प्रोजेक्ट के ऊपर, उसको मेनली जो है वो बताया जाता है। और इसी तरह से स्टेटस रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, और उसके अंदर जो है आप डिस्कस करते हैं इफ़ यू आर बिहाइंड द स्केड्यूल, इफ़ यू आर स्पेंडिंग मोर देन द एस्टिमेटेड कॉस्ट और बजट, तो उसको डिस्कस करेंगे। और स्टेटस के अंदर स्टेटस रिव्यू से जो है आप ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं फॉर द फ्यूचर। और इसी तरह से आप जब ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स या स्टेटस रिपोर्ट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन फोरकास्ट द प्रोजेक्ट स्केड्यूल, कॉस्ट और स्कोप को भी देख सकते हैं। तो उसके अंदर हमने जैसे लास्ट टाइम एक टेक्निक डिस्कस की, दैट वाज अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट, कि बेस्ड ऑन द करंट प्रोग्रेस, बेस्ड ऑन द करंट स्टेटस आप डिसाइड नहीं करते, आप एस्टिमेट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, कितनी इस पे कॉस्ट आएगी एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं कि हम प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और पहली इसके अंदर जो टिप है दैट इज़ यूज़ कम्युनिकेशन स्किल्स टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, और थ्रू सॉफ्ट स्किल्स आप उसको किसी हद तक मैनेज कर सकते हैं। और ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर। सेकंड पॉइंट इज़ डेवलप बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, और इसके अंदर भी हमने बात की कि आईटी जो प्रोफेशनल्स हैं दे आर नॉट वेरी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स। तो टॉप मैनेजमेंट को चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो
उनको ट्रेन करें, और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी इंडिविजुअल्स को खुद चाहिए कि वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। और इसी तरह से जो इफ़ेक्टिव मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट करनी चाहिए, वो भी काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है। और मीटिंग्स की जब हम बात करते हैं तो मीटिंग्स अगर बहुत फ्रीक्वेंट होंगी वो भी सही नहीं है। तो इफ़ेक्टिव मीटिंग से मुराद ये है कि यू मस्ट हैव सम प्री डिफाइंड एजेंडा फॉर द मीटिंग, एंड देन यू मस्ट आइडेंटिफाई द की पार्टिसिपेंट्स जिनको अटेंड करनी चाहिए वो मीटिंग। और डेफिनेटली हर एक का आपको टाइम कैलेंडर देख के डिसाइड करना होगा ताकि वो सारे अवेलेबल हों। और फिर ये टू द पॉइंट होनी चाहिए मीटिंग। जब मीटिंग हो तो उसके अंदर जो एजेंडा आइटम्स हैं उनको डिस्कस करना चाहिए पहले, और फिर इसी तरह से उसकी जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग हैं वो सबको डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन जिन का कंसर्न है उस मीटिंग के साथ और उस इंफॉर्मेशन के साथ। और अगर आप फ्रीक्वेंट मीटिंग करेंगे और तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली जो टॉप मैनेजमेंट है, जो आपका कस्टमर है, उसके लिए वो अटेंड करना प्रॉब्लमेटिक होगा। और जब फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होंगी तो वो इतनी इफ़ेक्टिव भी नहीं रहेंगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मीटिंग किए बगैर इंफॉर्मेशन कन्वे हो सकती है तो आप दूसरे मीन्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो है जो भी कोलैबोरेटिव टूल्स हैं, जैसे ईमेल के सॉफ्टवेयर हैं, आप ईमेल को यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग जो है, और भी जो डिफरेंट कोलैबोरेटिव टूल्स हैं, दे ऑल कैन बी यूज्ड टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट। और एक और की पॉइंट जो है वो ये है कि हम टेम्पलेट को यूज़ करते हुए, टेम्पलेट से मुराद क्या है कि जैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट है, तो अगर हमारे पास प्रोग्रेस रिपोर्ट का कोई टेम्पलेट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जिसने भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है उसके लिए इजी होगा कि क्या कुछ उसके अंदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये आपको हेल्प करती हैं प्रॉपरली कम्युनिकेट करने में। इस स्लाइड के ऊपर देखें, एक टेम्पलेट दिया गया है मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट का, और उसके अंदर बताया गया है कि फर्स्ट वन जो है अकम्पलिशमेंट बताई है फॉर दैट स्पेसिफिक मंथ, और फिर उसके बाद सेकंड वन देखें कि नेक्स्ट मंथ के लिए जो नेक्स्ट सेक्शन है कि क्या प्लान्स हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, फिर इश्यूज क्या हैं जो थर्ड सेक्शन है, और फिर इसी तरह से फोर्थ सेक्शन जो है जो भी इश्यूज हैं और उनसे रिलेटेड जो आपकी प्रोग्रेस हुई है उसकी बेस के ऊपर क्या प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस होने जा रही हैं, और उन चेंजेस को यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। नाउ वी समराइज टुडेज लेक्चर। वी डिस्कस्ड क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट। हमने पहले बात की क्वालिटी की इम्पोर्टेंस की कि आईटी जो प्रोडक्ट्स थी वो अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं और उनकी क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी, जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा है जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो रही है, और उसकी रीज़न यही है कि ऑर्गेनाइजेशंस आर मोर विलिंग टूवर्ड्स क्वालिटी प्रैक्टिसेस और क्वालिटी फ्रेमवर्क्स की तरफ जो है वो इंटरेस्टेड हैं, और उसकी वजह से जो है डेफिनेटली क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो रही है। जो की प्रोसेसेस हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से, दैट इज़ प्लानिंग क्वालिटी, जो भी एक्टिविटीज़ आपने प्लान करनी है क्वालिटी के हवाले से वो सारी, और क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बनता है एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस, और फिर बेस्ड ऑन दैट क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान वी परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़, जो भी वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, और वी आल्सो परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन दैट क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान। और फिर अगर कहीं पे उस डॉक्यूमेंट को और जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है अपडेट करने की ज़रूरत हो तो उनको अपडेट किया जाता है। और इसी तरह से जो है फिर हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, और ये एक बड़ा थ्रेट है अगर इफ़ यू आर नॉट प्रॉपरली कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन यू मे लीड टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट फेलियर। तो इसको हमें देखना होता है कि, और फिर हमने ये भी कहा कि आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं होते कम्युनिकेशन में। फिर हमने की प्रोसेसेस डिस्कस किए कि हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स, और फिर हमने कहा कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई ऑल द स्टेक होल्डर्स, और फिर हमने कहा कि वी हैव टू प्लान द कम्युनिकेशन कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं,
और फिर उसको कैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है, क्या मीडियम होगा, दैट इज़ ऑल क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और हमने कहा कि स्टेक होल्डर रजिस्टर जो है वो मेंटेन किया जाता है, डॉक्यूमेंट दैट हाईलाइट्स द स्टेक होल्डर्स, देयर एक्सपेक्टेशंस, रिक्वायरमेंट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, वो सारी चीज़ें। इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की कि राइट इंफॉर्मेशन ऑन द राइट टाइम टू द राइट पीपल, ये जो है एक की मैसेज है इसके अंदर, और ये बहुत ज़रूरी है। और फिर हमने बात की कि वी हैव टू मैनेज द स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस, और इसमें हमने बात की कि डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट होते हैं और डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस होती हैं रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। तो टॉप मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, ये उसका की टास्क क्या है कि वो इसको देखे कि क्या स्ट्रेटजी वो अडॉप्ट करता है टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। और फिर आखिर में हमने बात की परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग की, और इसके अंदर हमने कहा कि प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं, स्टेटस रिपोर्ट्स होती हैं, एंड दे हेल्प अस टू रिवाइज आवर डॉक्यूमेंट्स, आवर प्लान्स, और तभी हम सक्सेसफुली जो है प्रोजेक्ट कर सकते हैं जब हम प्रॉपरली कम्युनिकेशन जो है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा बात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।